اولیا کی سرزمین ملتان کے مذہبی اور سیاسی خاندان کے چشم و چراغ سید یوسف رضا گیلانی کتنے امیر ہیں اور ان کی اصل طاقت کیا ہے؟ مسٹر گیلانی کی پیر صاحب پگاڑا اور جہانگیر خان ترین سمیت پاکستان کی کن کن نامور سیاسی شخصیات کے ساتھ قریبی رشتہ داریاں ہیں، ان کا سیاسی پس منظر کیسا ہے، وہ ماضی میں کن سیاسی جماعتوں سے وابستہ رہے، وہ کب کیسے الیکشن لڑتے اور جیتتے رہے۔ 1988 کے جنرل الیکشن میں میاں محمد نواز شریف کو شکست فاش دینے والے یوسف رضا گیلانی پر ترک خاتون اول کے قیمتی ہار کی چوری کا الزام کیوں لگا؟ اس سارے واقعے کی حقیقت کیا تھی اور چودھری نثار علی خان نے وہ قیمتی ہار گیلانی صاحب سے کیسے نکلوایا؟ گزشتہ ماہ سے پاکستانی سرخیوں میں آنے والی امریکی گوری سنتھیا ڈی ریچی نے یوسف رضا گیلانی کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے ان پر جنسی ہراسگی کے کس قدر بھونڈے الزامات لگائے اور اس سارے معاملے کی اپڈیٹس کیا ہیں؟ تو جناب آج کی ویڈیو میں سابق وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی کے مال و دولت، بینک بیلنس، جائیداد اور اثاثہ جات سمیت ان کی ذاتی زندگی کی اہم ترین معلومات آپ کو ملنے والی ہیں۔ الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں کنزا فرمان۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دباتے ہوئے آل پر کلک کریں تاکہ میری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو ملے۔ اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ آج سے 68 سال قبل 9 جون 1952 کے روز ملتان شہر کی طاقتور سیاسی شخصیت مخدوم سید علمدار حسین گیلانی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یوسف رضا گیلانی رکھا گیا۔ ابتدائی تعلیم ملتان سے حاصل کرنے کے بعد یوسف رضا لاہور آ گئے اور یہاں گورنمنٹ کالج سے انہوں نے 1970 میں گریجویشن مکمل کی۔ بعد ازاں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور یہاں سے صحافت میں ماسٹرز کیا۔ یوسف رضا گیلانی کے پروفیسر شفیق جلندری نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ یوسف کو پڑھنے کا بہت شوق تھا اور اس کا ارادہ تھا کہ وہ جرنلزم میں پی ایچ ڈی کرے، لیکن چونکہ ان کا خاندان سیاسی اثر و رسوخ رکھتا تھا لہذا نوجوان یوسف رضا کو میدان سیاست میں اترنا پڑا۔ یہ وہ دور تھا جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جا چکا تھا اور چترال سے لے کر کراچی تک جنرل ضیاء الحق کا ڈنکا بجتا تھا۔ 1978 میں 26 سالہ یوسف رضا گیلانی مسلم لیگ کی سینٹرل کمیٹی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1982 میں انہیں وفاقی کونسل کا رکن بنا دیا گیا۔ اگلے برس 1983 میں ملتان ضلع کونسل کے انتخابات ہوئے تو جوان سال یوسف رضا گیلانی نے منجھے ہوئے سیاستدان سید فخر امام کو عبرتناک شکست دی اور یوں مسٹر گیلانی ضلع کونسل ملتان کے چیئرمین بن گئے۔ 1985 میں جنرل ضیاء الحق کی چھتری تلے غیر جماعتی انتخابات ہوئے تو یوسف رضا گیلانی نے کاغذات نامزدگی پر کیے اور الیکشن کے اکھاڑے میں اتر آئے۔ انہوں نے اپنے مد مقابل امیدواران نصر الدین شاہ اور ظفر اللہ خان کو شکست دی اور پہلی بار قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو کر اسلام آباد پہنچے۔ تب وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے انہیں اپنی کابینہ میں ہاؤسنگ اینڈ ورکس اور پھر بعد میں وزارت ریلوے کا قلمدان دیا۔ 1988 کے عام انتخابات سے قبل یوسف رضا گیلانی نے مسلم لیگ سے اپنے خاندان کی 50 سالہ رفاقت کو توڑا اور وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ انہیں بے نظیر بھٹو نے ملتان کے حلقے این 114 کا ٹکٹ دیا۔ یہ الیکشن گیلانی صاحب کے لیے میک اور بریک تھا کیونکہ ان کے مد مقابل کوئی اور نہیں بلکہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور اسلامی جمہوری اتحاد کے سرخیل میاں محمد نواز شریف تھے۔ تمام مبصرین یہی کہہ رہے تھے کہ یوسف رضا گیلانی نے مسلم لیگ کو چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے اور اس الیکشن میں گیلانیوں کو لگ پتا جائے گا، لیکن پھر جب الیکشن کے نتائج آئے تو دنیا حیران رہ گئی کہ سائیکل کے نشان سے لڑنے والے میاں نواز شریف کے تقریباً 42,000 ووٹ کے مقابلے میں تیر کے الیکشن سمبل سے لڑنے والے یوسف رضا گیلانی نے 58,300 ووٹ حاصل کیے اور یوں میاں صاحب کو 16,000 کے لگ بھگ ووٹوں کے فرق سے شکست دیتے ہوئے یوسف رضا گیلانی دوسری مرتبہ ایم این اے بنے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر بنی تو گیلانی صاحب کو ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی وزارت دی گئی۔ 1990 کے جنرل الیکشن میں یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی کے سیاسی اتحاد پی ڈی اے کے کینڈیڈیٹ تھے۔ انہوں نے اپنے مخالف اسلامی جمہوری اتحاد کے مخدوم سید حامد رضا کے 54,781 ووٹوں کے بدلے میں 60,076 ووٹ بٹورے اور تیسری مرتبہ
MNA बनकर 9 मुंतखब वजीर आजम नवाज शरीफ की अपोजिशन करने लगे। 1993 का जनरल इलेक्शन आया तो इसमें यूसुफ रजा गिलानी ने मुस्लिम लीग नवाज के हाजी सिकंदर हयात बोसन को 24,000 वोटों के बड़े मार्जिन से शिकस्त फाश दी और एक बार फिर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। तब वजीर आजम बेनजीर भुट्टो ने उन्हें स्पीकर कौमी असम्बली बनाया। 1997 के जनरल इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी मुस्लिम लीग नवाज के अपने रिवायती हरीफ सिकंदर बोसन से शिकस्त खा गए और पहली बार असम्बली तक ना पहुंच सके। अगले वर्ष उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाइस चेयरमैन नामजद कर दिया गया। 12 अक्टूबर 1999 के मिलिट्री टेक ओवर के बाद जहां कई दिग्गज सियासतदान जेलों में कैद हुए तो वहीं यूसुफ रजा गिलानी को भी जेल भुगतना पड़ी। उन्होंने अपने अयाम असीरी के दौरान अपनी याददाश्तों पर मुश्तमिल एक किताब तहरीर की जिसका नाम चाहे यूसुफ से सदा है। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि नैब की जानिब से उन पर रेफरेंस दायर किया गया था कि उन्हें माजी में अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए 300 मुलाजमीन की गैर कानूनी भर्तियां की और उन्हें 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई थी। 2002 के जनरल इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की जगह पर उनके छोटे भाई सैयद अहमद मुश्तबा गिलानी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बने, जिसे काफ लीग के सिकंदर हयात बोसन ने हराया। जबकि मुल्तान के एक और हलके से गिलानी साहब के भांजे सैयद असद मुर्तजा गिलानी इलेक्शन में कामयाब होकर MNA बने। लेकिन जब असद मुर्तजा गिलानी पीपल्स पार्टी में बनने वाले फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हुए तो यूसुफ रजा गिलानी ने बतौर वाइस चेयरमैन पीपल्स पार्टी इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्होंने पार्टी को अलविदा नहीं कहा। 2008 के जनरल इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी ने अपने मुखालिफ उम्मीदवार सिकंदर हयात बोसन को शिकस्त दी और 5वीं मरतबा रुकने असम्बली मुंतखब हुए। इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिली और वो नून लीग समेत अपने कई इत्तेहादियों को साथ मिलाकर इस पोजीशन में आ गई कि हुकूमत साजी कर सके। वजारत उज़्मा का कुराए फार मुल्तान के यूसुफ रजा गिलानी के नाम निकला। 26 मार्च 2008 के रोज यूसुफ रजा गिलानी ने बतौर वजीर आजम पाकिस्तान अपने ओहदे का हलफ उठाया और वो 4 साल 1 माह और 1 दिन प्राइम मिनिस्टर रहे। 2013 के आम इंतखाबात में गिलानी साहब के बेटे सैयद अब्दुल कादिर गिलानी मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2018 के आम इंतखाबात में मुल्तान के 3 हलकों से बिल तरतीब यूसुफ रजा गिलानी और उनके 2 बेटे अब्दुल कादिर गिलानी और अली मूसा गिलानी उम्मीदवार थे, लेकिन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने उन्हें शिकस्त दी। शायाना मिजाज और रोमानी तबीयत रखने वाले यूसुफ रजा गिलानी के बारे में कहा जाता है कि इस यूसुफ की जिंदगी में भी एक बार जुलेखा आई थी, ताहम इस बारे में ज्यादा तफसीलात सामने नहीं आ सके। हालिया दिनों में यूसुफ रजा गिलानी अमरीकी ब्लॉगर और सहाफी सिंथिया डीरिची की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात की जद में है। अमरीकी खातून की तरफ से संगीन नोयत का इल्जाम ये लगाया गया कि यूसुफ रजा गिलानी ने वजीर आजम होते हुए उन्हें ऐवान सदर में जिस्मानी तौर पर हिरासा किया और उसे गैर मुनासिब तरीके से गले भी लगाया। अभी चंद रोज पहले सिंथिया ने हरासमेंट के सबूत के तौर पर कुछ तस्वीर शेयर की, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दूसरी तरफ यूसुफ रजा गिलानी ने अमरीकी खातून को अपने वकील के जरिए 100 मिलियन रुपए हर जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया है। वकील का ये कहना था कि यूसुफ रजा गिलानी के मुताबिक हम बहुत जल्द सुर्खरू होंगे और हर जाने के तौर पर मिलने वाली 100 मिलियन की बड़ी रकम पाकिस्तान के फलाही इदारों में तकसीम की जाएगी। माजी में गिलानी साहब कीमती हार के तनाजे का भी शिकार रहे। आपको याद होगा कि 2010 में सैलाब जदगान की बेचारगी देखकर तैयब उर्दगान की अहलिया ने अपने गले से उतारकर अपना कीमती नेकलेस सैलाब मुतासरीन के लिए डोनेट कर दिया था, लेकिन उस कीमती हार पर गिलानी साहब की अहलिया की नजर पड़ी तो वो उन्हें पसंद आ गया। हुआ कुछ यूं कि वो नेकलेस गायब करवा दिया गया। 2015 में वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने FIA को हिदायत दी कि चोरी शुदा कीमती हार को ढूंढा जाए। तफ्तीश के बाद यूसुफ रजा गिलानी ने यह एतराफ किया कि वो कीमती नेकलेस उनके पास है और फिर बाद में वो नेकलेस सरकारी खजाने में जमा करवा दिया गया। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी के खानदानी पस मंजर की बात करें तो मुल्तान की दरगाह हजरत मूसा पाक की निस्बत से उनके मुरीदैन और पैरोकारों का एक वसी हल्का है। उनके दादा सैयद मोहम्मद रजा शाह गिलानी तहरीके पाकिस्तान के रहनुमाओं में शुमार किए जाते हैं और उनके बारे में मशहूर था कि उन्होंने कभी किसी इलेक्शन में शिकस्त नहीं खाई। यूसुफ रजा गिलानी के वालिद सैयद अलमदार हुसैन गिलानी भी सियासी शख्सियत थे। मारूफ सियासतदान हामिद रजा गिलानी उनके चचा थे, जबकि उनके एक और चचा सैयद वलायत हुसैन गिलानी जिला कौंसिल मुल्तान के चेयरमैन रहे।
यूसुफ रजा गिलानी के 4 साहबजादे और 1 साहबजादी है, जिनके नाम सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, सैयद अली मूसा गिलानी, सैयद अली हैदर गिलानी, सैयद अली कासिम गिलानी और सैयदा फिजा बतूल गिलानी है। गिलानी साहब की पाकिस्तान की अहम शख्सियत के साथ करीबी रिश्तेदारियां हैं। मुस्लिम लीग फंक्शन के रहनुमा पीर पगाड़ा सैयद मर्दान शाह यूसुफ रजा गिलानी के खालू थे, यानी कि सैयद यूसुफ रजा गिलानी की वालिदा और मौजूदा पीर पगाड़ा पीर सिबगतुल्लाह राशिदी की वालिदा सगी बहनें हैं। पीर पगाड़ा की एक पोती यूसुफ रजा गिलानी की बहू है। गिलानी साहब के कजन पीर सिबगतुल्लाह राशिदी की बहन इस वक्त आसिफ सरदारी के दस्ते रास्त और सिंध असेंबली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी की अहलिया हैं, जबकि रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाले साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद पीर पगाड़ा सैयद मर्दान शाह के सगे भांजे हैं। मखदूम सैयद अहमद महमूद के दोनों बेटे सैयद मुर्तजा महमूद और सैयद मुस्तफा महमूद जिला रहीम यार खान के हलकों से पीपल्स पार्टी के MNAs हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर खान तरीन की बीवी मखदूम अहमद महमूद की सगी बहन है। सैयद यूसुफ रजा गिलानी के जाती घरों और रिहायशी जायदाद के बारे में आपको बताते चलूं कि मुल्तान शहर की मुस्लिम गिलानी कॉलोनी में उनका जाती घर है। अगर बात करें सैयद यूसुफ रजा गिलानी की ज़राई जमीन के बारे में, तो इस वक्त पूरे मुल्क में उनकी 2040 किनाल की ज़राई अराजी है, जो 255 एकड़ बनते हैं। याद रहे कि यूसुफ रजा गिलानी की ज्यादातर जमीन जिला राजनपुर की तहसील जामपुर में वाक़या है। सैयद यूसुफ रजा गिलानी के कारोबार और ज़राए आमदन की बात करें तो ज़राई आमदनी ही उनका मुस्तकिल सोर्स ऑफ इनकम है, जहां से उन्हें हर साल 1.5 से 2 करोड़ रुपए वसूल होते हैं। इसके अलावा मुल्क भर में उनके हजारों मुरीदैन हैं। वो उन्हें कितने नजराने और तोहफे देते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। सैयद यूसुफ रजा गिलानी के बैंक बैलेंस की बात करें तो उनके एक बैंक अकाउंट में तकरीबन 31 लाख रुपए की रकम जमा है। 2017 तक उनके असासाजात की कुल मालियत 7,75,32,162 रुपए थी। कैश इन हैंड के बारे में बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए कागजात नामजदगी के मुताबिक सैयद यूसुफ रजा गिलानी के पास 1,11,89,621 रुपए की रकम कैश है। घर में मौजूद फर्नीचर की बात करें तो गिलानी साहब के घर के फर्नीचर और लग्जरी आइटम्स की कुल मालियत 48 लाख रुपए है। उन्होंने कितना कर्जा ले रखा है और उन्होंने पाकिस्तानी बैंकों को कितनी रकम वापस करनी है, तो उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए रिकॉर्ड के मुताबिक उन पर कोई भी कर्ज या रकम वाजिबुल अदा नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी पर कायम किए गए मुकदमात की बात करें तो इस वक्त उन पर 2 केसेस दायर हैं। वो किस मुल्क की सैर तफरीह कर चुके हैं, तो रिकॉर्ड के मुताबिक वो अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, भारत, UAE और सऊदी अरब समेत दुनिया के कई अहम ममालिक का सरकारी और निजी दौरा कर चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप जहांगीर खान तरीन की पॉलिटिकल जर्नी और असासाजात के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम की बायोग्राफी के लिए यहाँ नीचे और तैयब उर्दुगान को जानने के लिए इधर क्लिक करें। इलेक्शन बॉक्स लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज और नासिर।